gases. The spaces between the particles of gas are very large. और गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. The force of attraction between the particles of gas is negligible, so the particles of gas are free to move in any direction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होता है पार्टिकल्स बिटवीन गैस वो नेग्लिजिबल होता है, जिसके चलते ये तो बहुत ही आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं. The position of particles of a gas as well as the space between the particles of a gas are not fixed. The particles of gas have maximum movement or maximum kinetic energy. Due to this, the gases have the most disorderly arrangement of particles. Because of high kinetic energy and negligible force of attraction, the particles of gas move with high speed in all directions. हाई काइनेटिक एनर्जी और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने के चलते पार्टिकल्स ऑफ गैसेज जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से मूव करते रहते हैं. When the fast moving gas particles hit the walls of the container, they exert a pressure called gas pressure. एक फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स को यदि आप गैस की कोई भी कंटेनर होता है उस कंटेनर पर कंटिन्यू हिट करते रहता है, जिसे ही कहते हैं गैस प्रेशर. Thus a gas exerts a pressure on the wall of its container. The pressure exerted by a gas is due to collision of the fast moving gas particles against the wall of the container. When a gas is put in an empty container, it quickly spreads throughout the container and fills it completely. If a gas is heated, the particles of gas starts moving faster and faster. यदि गैस को हीट कीजिएगा तो वो और फास्ट मूवमेंट उसमें शुरू हो जाएगा और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंटिन्यू कोलिजन करना शुरू करेगा, और जिसके चलते उसमें और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो तेजी से मूव करना शुरू करेगा. एज एग्जांपल योर प्रेशर कुकर. यू वॉच प्रेशर ऑफ गैस इन प्रेशर कुकर. A gas does not have a fixed shape because the position of its particles are not fixed. A gas does not have a fixed volume और गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है because the space between its particles are not fixed. Since the particles of a gas are free to move anywhere, it takes the shape and volume of its container. A gas can compress easily because its particles are far apart and there are large space between them, which can be reduced by compression. A gas has a very low density because its particles are very far apart from one another. और गैस की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. A gas fills its container completely because due to high kinetic energy and negligible force of attraction, the particles of gas moving with high speed in all direction. और एक गैस जो है एक गैस ही है जो कि कंटेनर को कंप्लीट रूप से फिल करता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ attraction. A gas flows easily because its particles are completely free to move anywhere. A gas has no fixed shape, it takes the shape of container, and a gas has no fixed volume, it takes the volume of its container. Solids and liquids cannot be compressed, but gas कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली. सॉलिड और लिक्विड्स को तो हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं. गैसेज हैव वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी. दे कैन बी कंप्रेस्ड into very small volumes by applying large pressures. Due to high compressibility, fairly large mass of a gas can be put in a small metal cylinder by compression. Such gas cylinders can be transported conveniently from one place to another. The cooking gas, liquefied petroleum gas LPG, which we use in our home, is a compressed gas. हमारे घरों में यूज होने वाला गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या होता है, हाई प्रेशर पर एक छोटे से सिलेंडर में गैस को रखा जाता है. एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी filled in cylinder is being used increasingly as a fuel to run vehicles like cars and buses. और कार और बस में जो यूज किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी हाई प्रेशर पर एक सिलेंडर में उसे कंप्रेस करके बहुत ही मात्रा में गैस को एक छोटे से जगह में रखा जा सकता है.
diffusion, the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion। यदि कोई substance या कोई मैटर जो है जो एक दूसरे में मिक्स कर रहा है ड्यू टू मोशन, किसके चलते? ड्यू टू मोशन, मोशन के चलते यदि कोई मिक्स कर रहा है तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन, या ऐसा मैटर का प्रॉपर्टी है जो कि मोशन आधारित प्रॉपर्टी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जैसे कि अगर रूम में अगरबत्ती जला दीजिए तो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोशन। तो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड diffusion। diffusion occurs in gases, liquids and solids। diffusion is fastest in gases and slowest in liquids। diffusion गैस में भी, liquids में भी और solids तीनों में पाया जाता है, क्योंकि तीनों में मूवमेंट के चलते यदि कोई मिक्सिंग हो तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है गैस में और स्लो होता है सॉलिड्स में। The rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर का। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो आपका डिफ्यूजन का रेट घट जाएगा। This is because when the temperature of a substance is increased by heating, its particles gain kinetic energy। जैसे ही substance को हीट करते हैं तो particles kinetic energy gain करता है and move more rapidly, और तेजी से मूव करना शुरू करता है। and this increase in the speed of particles of a substance increases the rate of diffusion। और जैसे ही आपका पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ा तो क्या हो गया? रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ गया। The phenomenon of diffusion tells us that the particles of matter are constantly moving। और ये डिफ्यूजन के फेनोमेनन से पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। किसी भी मैटर को, कोई भी मैटर को यदि हम लोग हीट करेंगे, हीट करते हैं तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। हीट कीजिएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ गया, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड्स में डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा फास्ट जो डिफ्यूजन होता है वो किस में होता है? गैस में फास्टेस्ट है, उससे कम है लिक्विड में, और सबसे स्लो है सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन।